unpredictability lived up to its name in the final. And just like that, the curtains fall on a tournament that was nothing short of electric. From nail-biting finishes to breakout brilliance, this season had no dull moments. Hello and assalamu alaikum everybody. Umeed hai aap sare khair khairat se honge. Welcome back to the final and last episode of PSL Diwane Season 2, brought to you by Sports Side. I'm Avina and joining me today is Abdul Rahman. How are you doing today? I hope you're doing well as well. And yes, PSL has comes to an end. जहाँ पे लाहौर कलंदर ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई है. So looking forward to discuss about it. Amazing. So am I. I am very happy. Lahore Qalandars won. Let's cut to the chase. आज हम लोग बात करेंगे all things about the tournament, discussing the last match, having a look at the standout performers, and then also each team's journey, and of course the big awards. बात करते हैं Lahore versus Quetta. Well, how good of a final was that? I mean, Quetta won the toss and उन्होंने जी decision लिया bat करने का. And they posted a total of about 201 thanks to Hassan Nawaz's fiery 76. But the match saw plenty of drama. I mean, Asif Ali's injury, a concussion scare, Naeem's fitness issues. I mean, you name it, it happened. थोड़ी सी और बात करें तो हसन नवाज ने जी दिया उनको मोमेंटम. फहीम ने आगे बहुत क्रूशल रन स्कोर किए and then Abrar and Usman भी आए. I'll let you do the talking. I'll be leaving you with a question here now. Quetta made it to the final, big stage. Where did it all go wrong? I mean, they fell apart against Lahore. And what do you make of Hassan Nawaz's knock in the final? Yes, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी. कलंदर्स जीत गए, मेरी ग्लैडिएटर्स हार गई. Yes, ग्लैडिएटर्स played well. एक महीने तक अनबीटन रहे, एक महीने के बाद जाके अपना पहला मैच हारे और वो भी फाइनल में जाके. Yes, they played well, but end पे जो कहते हैं कि execution नहीं हो पाई and their main players जो एंड पे लैग कर गए. their main bowlers जहाँ पे जो टोटल डिफेंड होना चाहिए था because it is the highest T20 final total chased. Highest T20 total chased in any T20 match. Yes. तो ये एक रिकॉर्ड बना है. एंड यस, यू आस्क्ड अबाउट हसन नवाज. ये पहला खिलाड़ी है कि जिसने पीएसएल में सेंचुरी करने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी कर ली थी और पहला इमर्जिंग प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुका था फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम. हमने देखा था कि वहां पे इससे पहले ओपन करता आया था, बट इन पीएसएल उसकी पोजीशन उसकी शकील की वजह से उसे नीचे खेलना पड़ा. जिस तरह से उसने एडॉप्ट की अपनी पोजीशन को, जिस तरह से वो खेला है, मेरे ख्याल से राइटली डिजर्व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. एंड हेड्स ऑफ टू द ज्यूरी एज वेल कि जिन्होंने मैं कामरान मुजफ्फर का ट्वीट पढ़ा था कि उन्होंने भी लिखा था कि ज्यूरी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोई एस्टेब्लिश टीम की तरफ नहीं गए और हसन नवाज को जो कि इमर्जिंग प्लेयर थे उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया. सो ये एक अच्छा साइन है. और अब देखना होगा 2 दिन बाद बांग्लादेश की सीरीज पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है. सो लेट्स सी कि हसन नवाज पाकिस्तान कलर्स में मिडिल ऑर्डर में किस तरह परफॉर्म करते हैं. Let's see. कुछ भी हो सकता है. Then we have, Lahore Qalandars. Naeem Abdullah Shafi gave the team the solid start they needed to chase that 200. Kusal and Sikandar Raza finish it off with an excellent display of hitting. And then we have Shaheen, Salman, and Haris picking up a couple of wickets among them. Now, did Lahore Qalandars speak at the right time? Aapki kya raay hai regarding the captaincy? And how good was Sikandar Raza taking his team home along with Kusal Pereira? कैप्टेंसी पे तो बाद में बात करेंगे. कलंदर्स वी कैन से प्लेड लाइक अ कलंदर्स बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन. आपकी लीग बंद हो जाती है. उसके बाद आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनमें आपकी मेन कोर है डैरेन मिचेल, सैम बिलिंग्स, दे रिफ्यूज टू कम बैक, वो नहीं आते. फिर उसके बाद आपका जो मेन प्लेयर है ईशद, वो बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने चले जाता है. आपका एक इंटरनेशनल प्लेयर सिकंदर रजा वापस आता है, वो एक मैच खेलता है. फिर उसके बाद आप अपनी की इंक्लूजन कर कुशल परेरा वापस आता है टीम के साथ जिसको पहले मैच नहीं था मिला हुआ. फिर आपकी इंक्लूजन करते हो शाकिब उल हसन टाइप. आप बांग्लादेश से प्लेयर लेके आते हो. फिर उसके बाद आपका कोच वापस नहीं आता, आपकी टीम विदाउट कोच खेलती है. फिर सिकंदर रजा आपको मस्ट विन गेम जितवा के वापस इंग्लैंड चले जाता है अपना टेस्ट मैच खेलने. वहां से टेस्ट मैच खेल के थर्ड डे पे मैच खत्म हो जाता है. फिर उसके बाद
from Nottingham to Birmingham, Birmingham to Dubai, Dubai to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Qatar. लाहौर एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट से गद्दाफी स्टेडियम 10 मिनट पहले मैच स्टार्ट होने की, सो इट्स अनबिलीवेबल। और जो ये सब काम जो होता है, एंड स्पेशल क्रेडिट टू समीर राणा एज वेल कि जिस तरह से उन्होंने ये टीम लेके चले हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोच भी नहीं है, आपके ओवरसीज प्लेयर्स भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये टीम लेके चलना, और इस सीजन में तो आपको ये भी कहने वाला नहीं है कि लाहौर कलिंदर्स राशिद खान की वजह से जीतती थी, या लाहौर कलिंदर्स की जो कैप्टनसी है वो किसी डेविड वीजे या किसी और सीनियर प्लेयर की वजह से होती थी। सो हैट्स ऑफ टू शहीन शाह अफरीदी एंड ऑल मैनेजमेंट कि जिस तरह से वो टीम को लेके चले। सो राइटली डिजर्व विनर्स हैं, एंड दे शोड what is a team, और जिस तरह से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनका, they gave a chance to Mohammed Naeem in an entire tournament, उसको पूरा चांस मिला, स्टेज मिला टू शोकेस हिज टैलेंट, और फर्स्ट टाइम था कि लाहौर कलिंदर ने कोई इमर्जिंग बैटर के साथ गई थी। इससे पहले उनके पास थे सुहेल अख्तर, बट ही वाज आल्सो अ प्लेयर ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद अब जाके मोहम्मद नईम के साथ स्टिक किया था। सो ये एक हमें नजर आता है कि पीडीपी सिर्फ नाम नहीं बना रही, या सिर्फ ये नहीं कह रही कि वी आर, कि हमारा प्रोडक्ट है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। यू कैन नेम इट, आप सलमान मिर्जा 2016 PSL 6 में डेब्यू किया फॉर लाहौर कलिंदर्स, फिर उसके बाद साथ साथ पीडीपी भी चलते रहे, जिम्बाब्वे भेजा फर्स्ट क्लास खेलने, उसके बाद अभी टीम में आए, एंड ही प्लेड एन क्रूशियल रोल एज वेल फॉर द टीम इन द प्लेऑफ्स। सो ओवरऑल वी कैन से कि लाहौर कलिंदर्स की जो कोर है, और हमने लास्ट शो में बात की थी कि लाहौर वाहिद टीम है कि जिसकी जो कोर है वो स्टार्ट से लाहौर के साथ ही खेलती है, ये फखर हारिस एंड शाहीन, सो जमान खान, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड मैं कहता हूँ कि मैंने तो इस जवाब में पूरा सब समझ कर दिया है इस लाहौर कलिंदर की जर्नी को। सो यस, लाहौर कलिंदर्स राइटली डिजर्व। They rightly did. I mean, it was an action-packed final. But बात हो गई है क्वेटा की, बात हो गई है लाहौर की. Now let's unpack the rest of the teams. बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में. I mean, what happened to their batting in the last match? क्या poor shot selection थी? Quality bowling by the opposition? Take it away. Walk me through. Yeah, just moving towards Islamabad United, let's talk about Quetta Gladiators as well. So Quetta की अगर हम बात करते हैं entire season, अगर हम बात करते हैं वो PSL 1, मैंने ट्वीट भी किया था कि PSL 1, PSL 2 रनर्स अप, फिर उसके बाद PSL 2 में एक अच्छा चांस था, बट एक लीग को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए यू लॉस्ट योर एंटायर मेन कोर, और इसकी वजह से आप फाइनल हार गए थे। और फिर उसके बाद से PSL 3 में आप नहीं आए फाइनल में, PSL 4 में यू वन द ओनली टाइटल, उसके बाद से आप रिटर्न कर रहे हैं। फिर लास्ट ईयर आपने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया, और उसके बाद अब जाके आप रनर्स अप आए हो, एंड इट्स नॉट कि आप सिर्फ रनर्स अप आए हो, आपने 8 मैचेस भी जीते हैं ऑन द डॉट। और फिर उसके बाद जिस तरह से आपकी टीम रही है, फर्स्ट टाइम सो शकील कैप्टनसी कर रहा है PSL में, सेकंड उसका PSL सीजन है, सो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर कोर बनी है, एंड जितनी तारीफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जाए कम है। अगर ये दो टीम्स ही डिजर्व करती फाइनल खेलना, और मेरे ख्याल से चौक एंड पे कर गए कि जहाँ पे मोहम्मद आमिर और खुरम शहजाद से जो उम्मीदें थी वो नहीं कर पाए। सो ये एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे। और जहाँ तक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, टूर्नामेंट का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। पिछले सीजन के 5 मैच जीते हुए आ रहे थे, इस सीजन के 5 मैच पहले जीत गए। 10 मैच ऑन द रोड, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली टीम जो 10 मैच PSL के जीती थी। उसके बाद से जब लाहौर में मैचेस शिफ्ट हुए, वहां पे जब ये अपने 4 मैचेस हारी है टीम, मुझे लगता है कि वहां पे इनका डाउनफॉल आया, लेकिन बट लकीली दे क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, एंड लकीली दे क्वालिफाइड फॉर द टॉप 2 पोजीशन। और वहां पे आके जब आप क्वालिफायर खेल रहे हो, आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ऊपर से अच्छी तरह आपने बुक भी कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब आपने नीचे फहीम अशरफ की और चंद्रमन की जब आपने वो पार्टनरशिप होनी थी ऋषभ फर्नांडो की, वहां से जाके गेम थोड़ी खराब हुई थी। और जो मेन एक प्रॉब्लम रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वो यही है कि नसीम शाह वाज नॉट इम्प्रेसिव, और जो लोकल कोर, जो इस्लामाबाद की जो कोर की बात की जाए, नसीम शाह, आजम खान, वहां पे स्ट्रगल किया क्योंकि इनको गाजी गोली बुलाना पड़ा था।
to play in place of Azam Khan, क्योंकि जो आजम खान की जो कीपिंग थी वो बहुत बुरी थी, जिसकी वजह से वो उनको गाजी गोली और इमर्जिंग प्लेयर के साथ जाना पड़ा था। इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहते हैं कि प्लानिंग या एग्जीक्यूशन उनकी सही नहीं रही। दिमाग से खेलते हैं लेकिन दिमाग इस दफा उस तरह से नहीं चला, बट वी ऑल बिलीव दैट रेहान वाज स्ट्रिंगसी, और जिस तरह से रेहान भाई का स्टाइल ऑफ प्ले एंड देयर कंपनी, हमें देखना पड़ेगा कि अगले सीजन में किस तरह आते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो वही सेम मैनेजमेंट इज नाउ विद पाकिस्तान नेशनल टीम, माइक हैसन, सलमान मियां एंड शादाब खान, एंड हनीफ मलिक आल्सो जॉइंड पाकिस्तान टीम एज अ बैटिंग कोच एज वेल। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये किस तरह ये मैनेजमेंट चलती है और आगे किस तरह लेके चलेगा। सो या हार्ड लक रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस दफा भी, लेकिन टॉप 3 में फिनिश करना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, नोट पर। राइट देन, फिर कराची के बारे में क्या कहना है आपका? आई मीन कमबैक हुआ दिस सीजन, यूजुअली बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते थे एंड देन बट दिस टाइम दे केम अ बिट फार। बट डेविड वार्नर के कैप्टनसी के बारे में बात करें तो क्या आपकी राय है? आई मीन ही ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हिज प्लेयर्स। यस, 3 सीजन प्लेऑफ में के लिए क्वालीफाई ना करना, बॉटम पे रहना, फिर उसके बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना और कंटेंडर्स में रहना फाइनल खेलने के लिए, बट एंड पे चौक कर जाना। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर की कैप्टनसी को भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह से आपने टीम बिल्ड की थी ड्राफ्ट के, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी कराची किंग्स की टीम। सो 100%। ओवरऑल कराची किंग्स डिड रियली वेल इन दिस सीजन। एंड पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे चौक कर गए, और मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो पिंडी में मैच था, लीग टेस्ट का लास्ट मैच, वहां पे बॉलिंग पहले करना, और जहाँ पे आपको पता है कि बैटिंग फर्स्ट के लिए चांस ज्यादा है, मेरे ख्याल से अगर वहां पे जीत जाते तो इनके पास ये सेकंड टेबल की सेकंड पोजीशन पे होते हैं, क्वालिफाई खेल रहे होते हैं, तो एक चांस इनके पास एक्स्ट्रा होता, बट जो होना होता है वो हो जाता है। कराची किंग्स नहीं कर पाई, बट बिग पॉजिटिव डेविड वार्नर का आना है, डेविड वार्नर का उस चाहत के साथ कराची किंग्स के लिए खेलना, क्योंकि जब एक गैप आ जाता है, और वो भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वॉर की वजह से, जब आपकी लीग में गैप आता है, उसके बाद ओवरसीज प्लेयर्स का, खासकर डेविड वार्नर जैसे प्लेयर का वापस आना, इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द लीग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट्स यही है कि जब डेविड वार्नर ने हाँ की थी वापस आने की, बहुत से ऐसे फॉरेन प्लेयर जिन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने भी आने के लिए हाँ की थी। सो ये एक बिग मूव थी डेविड वार्नर की तरफ से, एंड एक लीग को भी पॉजिटिव इमेज आता है लीग का, और ओवरऑल एक इन्वायरमेंट का भी पता चलता है। सो द एंटायर कराची किंग्स मैनेजमेंट है डेविड वार्नर, इनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से इन्होंने रीबिल्ड किया टीम को, और खासतौर पर हसन अली की परफॉर्मेंसेस नहीं भूलनी चाहिए, जिस तरह से कमबैक किया है उन्होंने, एज अ वाइस कैप्टन खेल रहे थे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम बैक इन ग्रीन हाउस। आई एग्री। बात करते हैं फिर ज़ल्मी के बारे में। What positives do you see from their campaign this season? और what's your take on their team selection? क्या कोई decision से जिससे आप agree करते हैं या फिर आप disagree करते हैं by any chance? So मैं ज़ल्मी और मुल्तान के एक साथ ही रैप अप कर देते हैं, because we have discussed this in last podcast as well, क्योंकि Yes, we have. अगर हम ये दोनों टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, दोनों टीम्स के कैप्टन रिजवान एंड बाबर, the legend of Pakistan cricket according to some supporters, और वैसे भी on the numbers, on the reports, stats जो उनपे that they have served Pakistan cricket in past 4 years. So ये एक हैरानकुन बात भी थी, और जब इन दो प्लेयर्स पे लग रहा हो कि इनको T20 आई टीम से बात किए टू चेंज दिस स्टाइल, सो ये एक था। लेकिन मुल्तान की तो मैं हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट हमने पूरी बात कर ली हुई है what went wrong for them। लेकिन जहाँ तक ज़ल्मी की बात है, इनके पास चांस था, 2 मैचेस इन्होंने जीतने थे, वो 2 मैच नहीं जीत पाए। बाबर आजम की कैप्टनशिप पे सवालिया निशान है, पिछले 5 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, और मैं कहीं पे पढ़ा था कि सिर्फ 12 टूर्नामेंट्स बॉटल किए हैं बाबर आजम ने एज अ कैप्टन। सो या वर्स्ट रिकॉर्ड ही है। Oh wow, that was an interesting fact. But चले, I mean, it was an interesting season to say the least. बहुत कुछ हुआ नया, you know, a lot of events action packed. But
अब बात करते हैं कुछ स्टैंड आउट प्लेयर्स के बारे में, इमर्जिंग प्लेयर्स के बारे में। I'll be giving you a couple of names. Let me know कि आपके दिमाग में क्या आता है। But then also give me अपने stand out players or emerging players tournament में से। So first up we had Mohammad Naeem. तो मोहम्मद नईम का मैंने जैसे कि स्टार्ट में बोला कि जिस तरह से चांसेस मिले NBA अब जिस तरह जो लॉकलन है इसकी जर्नी शेयर की चुकी है पिछले 4-5 साल से और शही ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो उस पे काम करते हुए नजर आते हैं यस ही इज एग्रेसिव बैटर जिस तरह से चांस मिला है सो ही कैन बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर बट अभी टाइम है फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक में ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से अभी खेला था लेकिन कम मैचेस ही मिले सो ये देखना होगा कि वो किस तरह चलता है और आगे जाके क्या कर सकते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी है और हमें नजर आए कि वो ऑलराउंडर भी है बॉलिंग भी करते हैं खुद उसने बताया Yes. कि पार्टनर खैबर एजेंसी से का टीम का कैप्टन है और वहाँ पे वो रेगुलर बॉलिंग भी करता है सो लेट्स सी कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड साइड तो है लेकिन हमें एक राइट हैंडेड नहीं मिल सकता है Next up we have Ali Raza. One word that comes to your mind. अली रजा अली रजा एक ऐसा प्लेयर है कि जो सिर्फ इस PSL की वजह से नहीं स्टैंड आउट कर रहा है क्योंकि उसकी हम लास्ट एक साल की परफॉर्मेंसेस देखते हैं विद पाकिस्तान अंडर 19 टीम एंड इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट तो तब से ही परफॉर्म कर रहा है और वो तो एक स्टैंडर्ड प्लेयर है ही बट स्टिल ही इज टू यंग एंड टू रो तो उस पे काम होने वाला है अली रजा हो गया आपके पास शाहिद अजीज है आपके पास जुबैद शाह है आपके पास अच्छी पेसर्स है बस इन पे काम होने वाला है कि जिस तरह ये क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी खेलेंगे वो ज्यादा बेहतर है इनके लिए और मेरे ख्याल से यही इमर्जिंग प्लेयर्स हैं एंड लास्टली हसन नवाज हमने ऑलरेडी बात कर ली है सो या अच्छे टैलेंट हमने देखी है देखना होगा कि ये क्या करते हैं Definitely. देखते हैं क्या होता है. There's a lot of potential. बात करते हैं when it comes to the awards. There's a lot of them. Player of the match was Usal Pereira, 62 off 31 balls. Fazal Mahmood cap was given to Shaheen Shah Afridi. Hanif Mohammed cap was given to Saibzada Farhan. Batter of the tournament was Hassan Nawaz. Bowler of the tournament, Shaheen Shah Afridi. Fielder of the tournament was Abdul Samad. Something good for Peshawar Zalmi. Super all-rounder of a tournament was Sikandar Raza. Wicketkeeper of the tournament was Mohammad Haris again. Another positive for Peshawar Zalmi. They couldn't come to the final. Emerging player of the tournament was Mohammad Naeem. And then player of the tournament was Hassan Nawaz. अब what would be your team of the tournament अगर इसके बारे में बात की जाए तो team of the tournament openers पे फखर जमान obviously he will be there उसके साथ अगर आप ओपनर की बात करते हैं लेट्स सी आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं लेकिन आप डेविड वार्नर के साथ जाऊंगा मैं ओवरसीज पे सो ये हो गया फिर उसके बाद जेम्स विंस एट 3 एंड डेविड वार्नर कह रहा हूँ हसन नवाज आ जाएगा बल्कि नहीं आई विल गो विद फखर जमान साहिबजादा फरहान Oh wow, yes. 3 पे जेम्स विंस overseas James Wynn slash Abdullah Shafiq क्योंकि Abdullah Shafiq he also performed well फिर आप 4 पे नसर नवाज के साथ चले जाते हो फिर उसके बाद 5 पे विकेट कीपर सैम बिलिंग्स 6 पे सिकंदर रजा 7 पे मिस्टर PSL मिस्टर फहीम अशरफ 8 पे टॉप विकेट टेकर जो थे अब्बास अफरीदी टॉप विकेट कह रहा हूँ he was among the top wicket takers 8 पे ये हो गए 9th पे वो मेरी टीम के वाइस कैप्टन है हसन अली 10th पे अबरार अहमद 11th पे शहीन शाह अफरीदी द विनिंग कैप्टन और 12th पे आई विल गो विद मोहम्मद नईम Oh wow, okay, interesting team. Very interesting. According to PSL, again, the 10th season has happened. So now expected hai कि 2 new teams are going to be added to the overall tournament. Now, agar ye hota hai, then the retentions for the existing teams are going to be limited. Now, according to Umar Nadeem on Quitter Gladiators YouTube channel, he said that basically 3 local players honge and then 1 overseas player. Assume karte hain कि ये होता है ठीक है. Which players do you think each of the 6 teams are going to be retaining? Quitter Gladiators. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस तरह रिटेन करेंगे मैं अपना बताऊँ कि मुझे क्या लगता है कि मुझे
अकॉर्डिंग टू मी कौन हाँ, होना चाहिए। okay. सबके ग्लैडिएटर्स के लिए ऑब्वियसली हसन नवाज। Mm-hmm. हसन नवाज के साथ यूनिक अब जो शकील पहला पीएसएल खेला तो ऑब्वियसली वो रिटेन हो गई होगा। सो आपके पास ये दो आगे एंड थर्ड लोकल अगर मोहम्मद आमिर को आप मिस करोगे सो एक विल भी आपसे आती बट मैं करूँगा तो Okay. मैं शुभ आ जाऊँगा। And one एंड foreign. ओवरसीज आपके पास है ओवरसीज राइट Sweet. Lahore Qalandars. कुछ क्या लगता है लाहौर आप अपने क्लंदर्स शहीद शाह अफरीदी हारिस रऊफ कंफर्म है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक एंड फाना जमान है। अगर दो टीम आती हैं तो एक नई टीम सियालकोट आ सकती है तो अब्दुल्ला शफीक को सियालकोट में भेज दें एंड आई विल गो विद फखर जमान। ओवरसीज पे ऑब्वियसली सिकंदर Islamabad Nara then? इस्लामाबाद यूनाइटेड शदाब खान के बाद कौन है उनका नसीम शाह देन नसीम शाह एंड सलमान अली एंड ओवरसीज में जेसन होल्डर अगर आता है नहीं तो एलेक्स डेविस। Karachi Kings. कराची किंग्स हसन अली वास अफरीदी एंड गुलशन शाह। अगर वार्नर आता वार्नर नहीं तो जेम्स And जेम्स वार्नर है जेम्स Peshawar Zalmi. जावर ज़िल्मी बाबर साइम हारिस ये तो और है। Okay. And we have Yes. Multan Sultans. अच्छा फॉरनर्स में इनको वही टीके से ले जाए अली मोहम्मद Mm-hmm. वैसे तो दे शुड गो विद Okay. And Multan Sultans का फिर क्या देख रहे हैं future? मुल्तान सुल्तान्स रिजवान उबैद शाह एंड शाहिद अजीज with Michael Bracey. Okay. Now, finally, before we sign off, I've asked a lot of questions. I know. Just one last one. Which two teams would you like to see to be added to the PSL in the upcoming years? Sialkot and Hyderabad. Sialkot Indians must have. My city. Oh, wow. Interesting. Very interesting. Well, guys, that was all from us for today. It was an exciting tournament. It was action-packed with a lot of memories. Mubarak to Lahore Qalandars for winning their third consecutive title. उम्मीद है कि आप सबने भी टूर्नामेंट को ऐसे एंजॉय किया होगा जैसे And हमने before enjoy wrapping किया। up, thank you, Elvina, for hosting this season for Sportside. You did well, and best of luck with हमारे आगे की मज़ीद contents के साथ. So, Thank you so much. I was very honored. But yes, wrapping up, that is all from our side. It was an exciting tournament and it was plenty of memories as well. Mubarak to Lahore Qalandars for winning their not consecutive, but like their third title, obviously. But उम्मीद है कि आप सब ने टूर्नामेंट को ऐसे enjoy किया होगा जैसे हमने टूर्नामेंट को enjoy किया है. And that is all from our side. See you, inshallah, with another episode of PSL, not PSL. next season.